Buried in the mountain behind me are torn t-shirts, old curtains, scraps of clothes, pochas and dusters that have now been discarded. हमारे ही कपड़ों से बना है ये पहाड़. According to some reports, India discards 1 million tons of textiles every year and half of it comes from household sources. हमारे घर में कई ऐसे कपड़े होते हैं जो हम या तो अपने भाई बहनों को दे देते हैं, अपने दोस्तों को दे देते हैं या एनजीओज में डोनेट कर देते हैं. लेकिन उन कपड़ों का क्या जो डोनेट या किसी को देने के लायक नहीं है. हम सबके घर में एक कपड़ा ऐसा भी होता है जो फट चुका होता है, बट अब वो घर का पोछा या डस्टर बन चुकी होती है. द कतरन or the scraps that your local tailor throws away, the tablecloth that couldn't be recycled, so we chucked it in the bin. It all ends up here. अब ये सोचिए कि 140 करोड़ की आबादी इतना कपड़ा अपने घर से निकाल रही है. But we are here to find solutions. In the next hour, we'll speak to NGO founders, innovators, researchers, fashion experts to find the solution to this problem. ताकि छोटी से छोटी कतरन भी हमारे लैंडफिल्स में ना जाए. You are watching season 2 of Clothes with the Conscience और ये हैं हमारे आज के एंकर्स. Thank you, Varnika. It's good to be back on Clothes with a Conscience. In season 1, we spoke about the environmental damages of fast fashion and looked at how our conscious and mindful fashion choices can make a difference to the health of our planet. We brought you stories of designers and fashion brands who are working with innovative fabrics that are environmentally friendly and understood what slow and sustainable fashion means for us. And now we need to take that further. But before we move on, let's give you a recap of the season so far. Does it spark joy? Now that is a very interesting question, which means that if an item in your life evokes a sense of happiness, makes you feel good, makes you feel joyful, are the items that you should keep in your house. And items that don't evoke such kind of an emotion in your life, then they should be thanked and then be discarded. We made women part of our team and started creating products out of waste fabrics and trims and anything. And with that, we created products that were great replacements for plastic products. Cloth is a very important thing for sure, and we became almost the first institution in the world which has started talking about clothing as a development subject. Sari is a sustainable fashion brand that makes garments and accessories using pre-loved Indian saris. Hemp is extremely viable as a future fabric, especially given the status of climate change that the world is experiencing right now. Hemp is a great fabric because 1, it does not need a lot of water to grow. 2, it grows without any chemicals. The skins of the fish, which are usually taken off in the process of, let's say making a fillet, packaging and selling before consumption. That is what usually goes to waste, and that's what's upcycled into this fish leather. We collect temple flowers, used temple flowers to create prints. हमने अभी तक 30,000 किलो का जो केमिकल पॉल्यूशन है वो कम करा है, और 5,000 से 6,000 किलो तक का हमने फूलों को, जो फूल वेस्ट हो जाते हैं, उनको हमने वापस यूटिलाइज करके उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो बढ़ाई है. तो क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस के सीजन 2 में खास फोकस हम इस बात पर कर रहे हैं कि अपने पुराने कपड़ों को लैंडफिल या फिर कूड़े के पहाड़ बनने से हम किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखें तो उसके मुताबिक ये 1 मिलियन टन कपड़ों के ढेर की हम बात कर रहे हैं, जिसे हमें अपनी मिट्टी, हवा और पानी को प्रदूषित करने से रोकना है. चाहे वो आपकी पुरानी फटी टी शर्ट हो, जीन्स हो, पुराने पर्दे हो, कपड़ों के कतरन हो या बेडशीट, इनमें से किसी को भी
कूड़े में फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे आप डोनेट कर सकते हैं, इसे आप रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और इन कपड़ों को एक नई जिंदगी मिल सकती है। इसलिए क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस जो कैंपेन है उसका यही मकसद है कि सस्टेनेबल फैशन की हम बात करें और लोगों में इसको लेकर हम जागरूकता बढ़ाएं। तो आप जो एक चीज़ कर सकते हैं वो ये कि आप डोनेट करें और रिसाइकल करें ताकि उनसे कुछ और चीज़ें बने। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीमा महाजन जो प्रेसिडेंट हैं स्टूडियो ऑफ फैशन एंड क्राफ्ट उषा इंटरनेशनल, और इमरान खान सीनियर टीम मेंबर गूंज, और मल्हार कलाम्बे जो फाउंडर हैं बीच प्लीज के। मल्हार, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आपने एक शुरुआत की है जिसका नाम है बीच प्लीज। यहां पर आप बीचेस को साफ करते हैं और आपने बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ मिलकर यह काम किया है, टनों कचरा यहां से उठाया है। तो ये समझना चाहते हैं आपसे, उससे शुरुआत करना चाहते हैं कि जो ये कचरे जो आप ढेरों कचरा उठाते हैं उसमें कपड़ों का ट्रैश कितना ज्यादा है, और यहां से जो आपको पुराने कपड़े मिलते हैं बीच पर से उनका किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे कैसे डिस्पोज करते हैं? तो हम लोग मुंबई में एवरी वीकेंड क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हम कचरा कलेक्ट करते हैं एक क्लीन अप ड्राइव में वो करीबन 4000 केजीज टू 6000 केजीज के आसपास होता है। इसमें 15 to 20% जो वेस्ट होता है जो डिस्कार्डेड क्लोथ्स होते हैं, यूजुअली जो लोग घर पे पहनते हैं या फिर इंडस्ट्रियल कपड़े होते हैं वो लोग फेंक देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना सारा कचरा जो मिक्स्ड होता है उसकी वजह से ये रिसाइकल नहीं हो पाता है। बिकॉज इन द पास्ट हम लोग ने ट्राई किया है कि जो कचरा हम कलेक्ट कर रहे हैं स्पेशली जो क्लोथ्स है वो रिसाइकिल कर पाए, पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि इस क्लोथ्स में एक लेयर ऑयल हो जाता है, उसमें बहुत सारा सैंड हो जाता है। तो इफ यू हैव टू रिसाइकल द वेस्ट यू हैव टू टेक्निकली वॉश इट, क्लीन इट एंड देन सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग, और जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल मैं इमरान आपसे पूछना चाहूंगी। आप गूंज के प्रोसेसिंग सेंटर को, सबसे बड़े प्रोसेसिंग सेंटर को आप मैनेज करते हैं, तो लोग जो पुराने कपड़े देते हैं जो अच्छी हालत में भी हैं, चाहे उसमें कपड़े हों चाहे उसमें घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे पर्दे हैं, बेडशीट्स हैं, ये सब डोनेट करते हैं काफ़ी बड़े स्केल पर गूंज में। तो आपने तो डिज़ास्टर के दौरान भी बहुत काम किया है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ काम किया है, दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में। तो ये जो पुराने कपड़े हैं वो किस तरह से काम में आते हैं और आप लोग कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं? देखिए, गूंज को अभी 24 साल कंप्लीट हुए हैं और हमारी जर्नी जैसे रोटी कपड़ा और मकान में, तो कपड़े से इसकी शुरुआत ज़रूर हुई थी। लेकिन अगर हम अगले 8 साल की डेटा की बात करें तो लगभग 650 लाख किलो सामान को हम लोग चैनलाइज कर पाए हैं। और ये जो कपड़ा है या कुछ भी मटेरियल है उससे हमें डिग्निटी के साथ जुड़ना होगा, डेवलपमेंट के साथ जुड़ना होगा, शायद तभी ये बेहतर लाइनअप हो पाएगा। क्योंकि जो भी हमारे पास जो कपड़ा आता है ऐसा नहीं कि वो सब कुछ ख़राब है, लेकिन उसका लगभग 70-80% जो कपड़ा अच्छा आता है उसको हम लोग चैनलाइज कर पाते हैं विलेजेस में, और वो मतलब CFW के थ्रू, क्लॉथ ऑफ वर्क के थ्रू हम लोग डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं, उसको डिग्निटी के साथ जोड़ते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उनको भी मिल जाता है, जो उनके लाइफ में कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि जो लैंडफिल का हिस्सा हो सकता था जो कपड़ा, वो लोगों के डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर 20% या 15% भी कपड़ा अगर हम बात करें कि ऐसा कपड़ा है जो वाकई कहीं काम नहीं आ सकता है, अगर हम पिछले साल की डेटा की बात करें लगभग 17,50,000 किलो जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और वो कन्वर्ट भी इसी तरीके से किया कि वो 1-1 इंच कपड़ा का इस्तेमाल हो सके। हम लोग मतलब कॉटन का जो कपड़ा है उसको सैनिटरी नैपकिन पैड में बनाए, जो कि आपको पता है कि सैनिटरी नैपकिन पैड की कितनी बड़ी ज़रूरत है। जी। और अच्छी बात यह कि सैनिटरी नैपकिन पैड ये रिसाइकिल और अपसाइक्लिंग भी हो सकता है। तो ये सैनिटरी नैपकिन पैड अगर हम पिछले 8 साल की बात करें लगभग 7 लाख सैनिटरी नैपकिन पैड हम लोगों ने बांटा है। तो जो कॉटन का खराब कपड़ा था वो अगर फॉर एग्जांपल की शर्ट है तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो लोगों को डेवलपमेंट के लिए जाए और एक किसी ज़रूरतमंद को मिल जाए जो कि उसका तन के ढकने के काम आए। लेकिन जो कॉटन का खराब कपड़ा है वो सैनिटरी नैपकिन पैड में कन्वर्ट होगा, फिर उसी अलग विलेज में या उस विलेज में जिस महिला के पास नहीं है सैनिटरी नैपकिन पैड वहाँ पर चला जाएगा। अगर जीन्स की पैंट है या ओवर साइज पैंट है वो स्कूल बैग में कन्वर्ट हो गया, या फिर आसन में या सुजनी में, डिफरेंट टाइप। लेकिन शर्त यह है हमारे यहाँ कि 1 इंच भी कपड़ा हम लोग नहीं फेंक सकते, चाहे वो उसका की चेन ही क्यों ना बनाए। तो 1 इंच भी कपड़ा हम लोग, जो की चेन आप दिखा रहे हैं वो कपड़े से बना हुआ है? ये कपड़े से बना है, ये ऑडियो कैसेट का टेप भी बीच की फिलिंग है, ये किनारे का कपड़ा है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूल बैग है तो जींस की पैंट है, ये डिफरेंट टाइप पैंट है। 100 डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट है, जिससे फॉर एग्जांपल कि ये मतलब टाई भी इस्तेमाल किया गया है। जी। तो
तो ये 100 Let's take a डिफरेंट look at that. Can you hold us? जो The tie was बैग वो fascinating. बहुत ही very अच्छा, nice. बहुत Yes. इंटरेस्टिंग Because बैग है। आजकल a lot of people aren't wearing anymore. या तो ये मतलब ये अर्बन और रूरल के लिए भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अर्बन्स के लिए है, ये रूरल के लिए स्कूल बैग और गूंज का झोला, डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट, मतलब 1 इंच भी कपड़ा हम लोग नहीं फेंक सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है जैसे कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर कपड़ा हमारी इज्जत के लिए ढकने के लिए है तो हमें कपड़े की भी इज्जत करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये इसमें शायद हम बहुत हद तक सीखे हैं, बहुत हद तक सीख रहे हैं और वक्त के साथ सीखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि 1 इंच भी कपड़ा वो खराब नहीं होना चाहिए। I think also very important because we're all very well intentioned. We want to pass on our clothes, but we don't know if it actually gets used. So this way at least they make sure it's reaching the needy and it's getting used and it's not going to waste. That's a great, thank you so much, Manhar. But I want to bring in Professor Mahajan. You're with Usha International, but you've also been an academician with Pearl Academy, which is a fashion and design college. Repurposing waste materials, recycling textile is increasingly becoming a part of fashion and design. Professor, do you find more and more young design students in tune with this philosophy? Or is it still something that they need to be taught, that they need to be made aware of? There is a lot of change. I have been in this industry for 28 years and I see a lot of change, especially from 2010 onwards. There was a lot of talk about sustainability. We are talking about sustainability. We are teaching students. We are making part of the curriculum, giving them exposure and giving them life projects also. But I think it's very minimal. What is happening is only very few designers in India, especially young designers, are taking it ahead. And we can actually name, there's a handful of people, designers who are making it like a business or taking it ahead. But there is not so much which we can do as in India, being a huge country, specializing in so many textiles, having a philosophy of sustainability in our culture, religion, everywhere, but we are not doing much about it. So my request to educational institutes, I'm also part of education, but I think we can do many more things about it. Especially industry can handhold students. Students are doing some projects, but when it comes to application, I think they miss on that. So as a part of academic journey, they are conscious, they are thinking about it, they are becoming aware about it, but they are not taking it ahead in their jobs or in their brands. Yeah. जी, तो शायद इसमें ज़रूरत ये भी है कि लोगों को ठीक तरह से बताया जाए कि अगर आपकी नीयत है करने की तो कैसे करें। आप इसको जैसे आपके पास कपड़े हैं, कहाँ दें, कैसे दें, कलेक्शन सेंटर्स कहाँ हैं, उन कपड़ों का क्या होता है, ये तमाम चीज़ें। और आपने सही कहा कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को उस लेवल से ही शुरुआत करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे आपके सेंटर में इमरान कपड़े आते होंगे, ढेरों कपड़े आते हैं, तो आप उन कपड़ों को देखते हैं, उनको छांटते होंगे, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होने लायक शायद नहीं रहती होंगी, कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अच्छी हालत में नहीं है चीज़ें, उसका क्या करते हैं आप लोग, किस तरह इस्तेमाल होती हैं वो? देखिए, हम लोग वैसे तो चूंकि मतलब लाखों टन में हम लोग डील कर रहे हैं, तो बहुत सारे कपड़े तो ठीक ठाक कंडीशन में आते हैं। और पिछले हम लोग ने जब पिछले अगर हम देखें तो करीब 8-10 में जो मेहनत की है या जो मैसेज हम लोग ने देने की कोशिश की है कि आप थोड़ा ठीक हालत में दें, एटलीस्ट पुराना दें, लेकिन मतलब कम से कम उसको वॉश करके दें और ठीक ठाक हालत में दें, क्योंकि वो भी डिग्निटी का हिस्सा है, वो किसी की डिग्निटी के लिए जा रहा है। मतलब क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम ना फ्री में लेते हैं ना फ्री में देते हैं, तो हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन जब लोग देते हैं तो हम उसको प्रॉपर प्रोसेस करते हैं और फिर डेवलपमेंट के लिए या फिर डिग्निटी के साथ उसको देते हैं। बट जो कपड़ा ख़राब हालत में आ रहा है या तो उसमें हमारी ये कोशिश उसमें एक तो ये कि लोगों को इतना मैसेज करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कपड़े आते हैं जो मतलब आप सोचिए वोमिट किया वो यूज़ अंडरगारमेंट आते हैं, मोजे सॉक्सेस होते हैं जो बहुत ही मतलब स्मेल करता है। तो ऐसे भी हालात से हम लोग रूबरू बिना धोए देते हैं और ऐसे हालात से हम लोग रूबरू होते हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग उसको वेस्ट समझ के मतलब अब अलमारी में जगह नहीं है, उसको तो निकालना है। या जब डिजास्टर हो गया तो बिना ये सोचे हुए कि कहाँ पर क्या कल्चर है या क्या ज़रूरत है उसको भी लोग निकालते हैं। तो ठीक है, मतलब हम लोग उसको डील करते हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं या उनको अवेयर करते हैं कि आप थोड़ा सा बेहतर हालत में दें। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, चूँकि हम प्रोसेस कर रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं,
तो बेसिकली वी आर मीडिएटर बिटवीन अर्बन और रूरल, तो हम अर्बन के साथ रूरल के साथ जो काम कर रहे हैं तो वो डिग्निटी के साथ तो करेंगे, लेकिन जो खराब कपड़ा है जो कि वो 1-2 kg नहीं है, वो लाखों टन कपड़ा है, इस शर्त के साथ कि वो 1 भी इंच कपड़ा खराब नहीं जाएगा। तो जैसे मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिखाया ये सिर्फ 5 से 6 प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फॉर एग्जांपल पैंट है, पैंट में अगर 2 इंच पैंट विड्थ ज़्यादा है तो हम उसे रिपेयर करेंगे, और ये पहली कोशिश होती है कि वो गांव में जो इंसान है जो ज़रूरतमंद है, जिसने 2 या 3 दिन 5 दिन अपने तालाब में काम किया है, अपने कुएं पे काम किया है, रोड को साफ करने में काम किया, उसे मिले ताकि वो पहन सके और उसकी भी डिग्निटी जो लाइफ है वो थोड़ा बेहतर हो सके। लेकिन जो पैंट बिल्कुल ओवर साइज है या खराब है तो उसका एक बेहतर पार्ट हम लोग निकालकर डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट में, चाहे वो बैग में है या स्कूल बैग में है, या उसको उस तरह से कर दिए, या कॉटन कपड़ा है वो सैनिटरी नैपकिन पैड में कन्वर्ट कर दिए, तो 1 इंच कपड़े को हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। Manhar, I wanted to actually ask you, you're an environmentalist, and you started off, I think, when you were complaining once to your mom about the state of Mumbai's beaches, and she basically said, if you have a problem, do something about it. And that's what prompted you to start organizing beach cleanups and using social media to draw attention to the cause. Interestingly, it seems that your mom runs a garment business. So what does she do with the old scraps? Does she also, like you, believe that we have a role and responsibility in protecting our environment? How does she keep from polluting the environment? I personally believe that it's the responsibility of every individual to do something for the environment, individual steps do matter and have a larger impact. Yeah. Yes, like you rightly mentioned, my mom does own a business like a garment in a manufacturing unit. We try that most of the waste that comes out of the unit, meat, cloth, scraps or something like that, we send it for upcycling. So there is an organization based out of Mumbai that uses this to, make mattresses or some similar kind of products. But unfortunately, only 70 to 80% of it gets recycled or upcycled. The remaining 10 or 20%, still goes to the landfills. Yeah, that's a reality. Professor Mahajan, I want to pick up from what you were saying that the industry needs to pitch in. You worked with academia. Could you explain to us then how you think educational institutes who work in fashion and design can come together with the industry, can come together with consumers to work on this critical issue of textile waste that's choking our landfills? It's a big problem. I understand for industry it is not profitable. Even for designers, if they get into the business of sustainability or reuse. But my request to industry, and I feel that industry must give some part of their share. It may be few percentage of their business, make it like a mandate of the industry to work with designers or to work with students to give them live projects on that. Young minds are brilliant. They have lots of great ideas. Like we can see that, beach cleaning, how Imran is talking about, reusing all old fabrics into different products. Lots of young designers, young minds are very, very conscious about the environment and they want to do a lot of things about it, but they're not supported. So I think industry can play a very important role. They can sponsor the projects. They can involve these designers while they are making their products, garments, and, so that's how consumers will become aware. The lack is that consumers are really not aware of what do I do with it. In a normal household, if you talk to your family, friends, they really don't know, I have lots of clothes, I don't know what to do about it. So awareness, how the awareness is going to come? Awareness will only come when we are going to align consumers with what is available in the market, which is produced by industry and designers, and the young minds who are learning fashion or sustainable fashion, coming together, hand-holding each other and bringing new solutions for the market. So that's what I feel. I personally want to give a lot of projects to young students. Usha is also taking a lot of initiative. We want to give students a lot of ideas to convert a lot of waste, collecting it from their household, from their neighborhood, from their families and friends, making new products which are fashionable, which are everybody are going to use that, and then we also maybe sell it in the market
so that consumers can use it. जी, And it is, there's a lot of बिल्कुल आपने reduction सही in कहा that. एक तो कि इंडस्ट्री के सपोर्ट की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है, अवेयरनेस, जागरूकता कैसे करें, कहाँ करें। अब और इसमें शायद सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। मल्हार, आपने तो सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, तो ये ज़रा बताएंगे हमें कि कैसे सोशल मीडिया को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करें ताकि बहुत सारे और लोग भी आपके इस कैंपेन के साथ, जो आप बीच क्लीन अप करते हैं उसके साथ जुड़ें, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों जो मुंबई में नहीं रहते हैं, वो भी लोग जानें, वो भी जुड़ें। मैंने एक चीज सीखी है पिछले 6 साल में कि सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल। एक एग्जांपल दूंगा, अगर 200-300 लोग क्लीन अप के लिए आते हैं तो घर बैठे 10 लाख लोग, 20 लाख लोग मेरा कंटेंट देख के इंस्पायर हो सकते हैं। प्रैक्टिकली नॉट एवरीबडी कैन कम डाउन फॉर अ क्लीन अप ड्राइव एंड हेल्प अस विद द क्लीन अप, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे एफर्ट से, हमारे कैंपेन से भी सेंसिटाइज मोर एंड मोर पीपल। अभी हमें पता है बीच क्लीन अप्स एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। आज हम बीच साफ करेंगे, कल कचरा और आने ही वाला है, but we are using it as a very effective tool of sensitizing people. If you look at our community, 90% of the volunteers come from schools and colleges. So we are trying to catch them young, give them a platform, promote experiential learning. और मुझे ऐसा लगता है एक रूल है जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ, जिसे मैं 7-day रूल बोलता हूँ। So technically most of us individuals are impulsive buyers. इसका मतलब क्या होता है, हम ऑनलाइन गए, कुछ चीजें पसंद आ गई, हम खरीद लेते हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ। So what I usually do is every time I like something, I add them to my cart. I wait for 7 days और 7 दिन के बाद मुझे लगा कि वो चीज लेनी चाहिए तो ही मैं लेता हूँ। And trust me, मैं 10 में से सिर्फ 2 या 3 चीजें ही लेता हूँ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर कुछ ऑनलाइन बैठे बैठे सामान खरीदते हैं तो रुक जाइए, 7 दिन कार्ट में छोड़ दीजिए, जब चाहिए तभी लीजिए, ऐसे मत लीजिए। स्क्रीन पे भी हम आपको जानकारी दे दें कि आप देख सकते हैं उन तमाम जगहों के एड्रेसेस हैं जहां पर आप इन पुराने कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं। Well, thank you all. Thank you for your time, for your energies, everything that you do, for being change makers and showing us that even if our clothes are in poor shape or just rags, you don't have to throw them away. They don't, not even a single scrap. There's always some use for them. And we have some more experts who are doing this. There are many more. We have Pratibha Mishra, Professor at the Department of Fashion Design at Manipal University, Jaipur, joining us, and Neerja Palisetti, founder of Sutrakar Creations, that works towards sustainable creations from upcycled paper and other industry excess. We also have Sajan Abrol, founder of the Clothes Box Foundation, which receives clothes and then redistributes them to those who need them the most. They also upcycle cloth scraps by making, amongst other things, beds for dogs. Neerja, first to you, though, you started Sutrakar precisely to use up the kind of old scraps and fashion industry excess that we've been talking about. Tell us how you go about it, please. So at Sutrakar, what we do is we upcycle and recycle all kinds of waste. Our first and foremost was a paper waste. We try to do that, and we are quite known for our paper upcycling. And apart from paper upcycling, we also do the upcycling of fabric waste. So it's a fabric waste that we get from the garment industry, from the textile industry. We also use yarn waste and cords and all that, and all kinds of waste technically. The reason for using and upcycling all kinds of waste is because there's so much of waste all around us, and the negative impact that it's having on the environment is something that we need to be concerned about. And textile industry is one of the biggest, pollutant. And we have so many skilled people all around us, traditional skills of weaving and spinning. So we incorporate that into creating something contemporary with the waste that's all around us. जी बिल्कुल। और साजन, आपसे जानना चाहती हूँ कि क्लोथ्स बॉक्स में जब लोग कपड़े डोनेट करते हैं, उसमें कपड़े डोनेट तो कर सकते हैं, फिर जो कपड़ों के आपको वहाँ पे कतरन मिलते हैं, उससे आप लोग कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जिसकी काफ़ी ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें भी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये किस तरह की चीज़ें हैं। Well, thank you for having me on the show first. So depending on the size of the fabric, it can be repurposed into something useful. So if it's an absolute tiny piece or in leftover small cutting, then we put it into shredding and then reuse into our social project, like you said, where we make beds for strays every winters. We store all our fab scrap throughout the year and we end up making thousands of beds by employing women from the rural areas. It creates a great inclusive circularity program.
For the larger pieces, these could be scraps like leftover fabric rolls or large cut pieces used in making blankets and school bags, again given out free of cost by Clothesbox Foundation Pan India. So last year we made more than 500,000 of these items, and there's always a need for more. So if these are used in the right way, these scrap pieces would be very resourceful. And India and Indians definitely believe in the reuse concept. जी जी, प्रतिभा मिश्रा भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर मिश्रा, आप डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिज़ाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी से हैं। आपसे ये समझना है कि किस तरह के हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि हमें नए आइडियाज़, नए इस्तेमाल के बारे में जानना है कि जो आपका पुराना कपड़ा है, जो वेस्ट है, जो कतरन है, उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो आप ये बताएंगे कि आपके इंस्टीट्यूट में से ऐसे कई नई आइडियाज़ निकले हैं क्या, जहाँ पर कपड़ों को, पुराने कपड़ों को नई डिज़ाइनिंग दी जा सकती है, उनके नए नए इस्तेमाल होते हैं और अच्छे इस्तेमाल होते हैं, नए डिज़ाइन इनोवेशंस वहाँ से क्या निकल रहे हैं इंस्टीट्यूट से? हम लोग जैसे आई एम वर्किंग विद मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, तो हम लोगों के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन के, तो उन लोगों को यूजुअली हम यही प्रेफर करते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी को रखें ध्यान में, और यूजिंग दे आर प्रिपेयरिंग लाइक रिसेंटली दे हैव डन अ प्रोजेक्ट, उसमें उन्होंने पुराने कपड़ों को यूज करके एक नया गारमेंट बनाया जो डिस्कार्डेड था, बिल्कुल डिस्कार्डेड कुछ फैब्रिक के पीसेस को लेके उनको एक नया बिल्कुल एक डिफरेंट शेप देके एक डिफरेंट तरह का गारमेंट बनाया। और दूसरा क्या होता है, अभी जब मैं सुन रही थी कि सस्टेनेबिलिटी को एकदम से अडॉप्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। रीजन इज दिस कि अभी आज मार्केट में जाएं तो जितना ज्यादा फास्ट फैशन अवेलेबल है, इतना इजीली चीप लेवल पे बहुत, आप ये देखिए 100 रुपए का भी टी शर्ट मिल जाता है। तो आज का यूथ जब तक अवेयर नहीं होता तो सस्टेनेबिलिटी को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, कि मैंने सर्वे किया था अप्रॉक्सी 500 स्टूडेंट्स के ऊपर, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, दे डोंट नो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कपड़ा पॉलिएस्टर का बन रहा है, कॉटन का बन रहा है, कहाँ से बन रहा है। तो जब तक हम इनको ट्रेन नहीं करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। और हमारे यहाँ डिजाइन में स्पेसिफिकली हम लोग अभी जैसे 2030 तक का है कि सस्टेनेबिलिटी आना चाहिए, तो हमारे स्टूडेंट्स को हम वही प्रमोट करते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट तो उनका पक्का से ऐसा होता है जिसमें उनको ये स्पेसिफिकली ब्रीफ दिया जाता है, यू आर नॉट सपोज टू यूज फ्रेश फैब्रिक। आपको पुराने कपड़े को, आपके पास जो छोटे छोटे पीसेस बचे हैं या आपको लगता है किसी फैक्ट्री से जाके लेके आ सकते हैं, आप वो लेके आइए और उसके थ्रू गारमेंट्स बनाइए। तो कहीं ना कहीं एक बच्चों को एक वो फील आता है कि यस वी कैन डू वंडर्स विद स्क्रैप आल्सो। You can do wonders with scrap, but how do you get them, Sachin? How do you source your scrap? Will any kind of scrap do? So ma'am, mostly it's through individuals. People can go to our website or come at our Gurgaon center and donate. A lot of it comes from large and small factories. There are usually owners who are very socially conscious. So they take the pledge of giving out all these fab scraps. And we'll be able to use the torn clothes and the fab scrap. You just have to go and Google us, send the material to our given address, or you can, go to our website, Google us, or our number is there on Google for any help. So these are quite usable. धन्यवाद आपका ये बताने के लिए। प्रोफेसर मिश्रा, एक आखिरी आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है उसने किस तरह से बदला है इस जो रिस्पॉन्स आता है सोसाइटी से उसे, और जो एक फिक्र है कि कैसे हम अपने स्क्रैप का इस्तेमाल करें, वो टेक्नोलॉजी के सहारे कैसे बेहतर हुई है? और टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक हमें हेल्प भी किया है। लाइक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप विद इन सेकेंड्स अपने प्रोडक्ट को वहां लेके आ सकते हैं। तो काफी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कॉन्शियस फैशन में बिलीव करते हैं, वो जितना भी सोशल मीडिया पे अपना कैंपेन चलाते हैं, तो वो कैंपेन के थ्रू बच्चे देखते हैं। और मुझे बार बार मैं अगेन आई फोकस, अगर हम हमारे यूथ को अवेयर कर देंगे, उनको एजुकेट कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉब्लम आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। और सोशल मीडिया का जो मैक्सिमम यूजर है वो यूथ ही है।
तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें हेल्प भी कर रही है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी से सिर्फ हमें हार्म हुआ है, बट अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस सोशल मीडिया के थ्रू वी कैन रीच एनीवेयर, हम अक्रॉस वर्ल्ड, अक्रॉस ग्लोब कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्प करता है उसमें। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे खास करके सोशल मीडिया की मदद से अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता में बहुत मदद मिली है। नीरजा जी, अब आप कैसे इस बात की गारंटी लेती हैं कि जो बन रहा है हमारे कतरन से, जो हमारे पुराने कपड़े हैं, उसमें एक तो क्वालिटी हो और फिर इसके साथ साथ ड्यूरेबिलिटी, कि वो जो है वो कुछ साल चलेगी, वो अच्छी चीज़ है, ये लोगों को भरोसा दिलाना। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना पड़ता है जब आप सिलेक्ट करती हैं, जब आप चुनती हैं स्क्रैप को? अब जब हर कोई जब वेस्ट पे काम करता है तो क्वालिटी लाना, हाथ का काम जो होता है, हथकरघा जो है हमारा इंडस्ट्री, उसमें क्वालिटी मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और हमारे जो कारीगर लोग हैं, जितने भी हैं, उन लोगों को ये ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम क्वालिटी वाली चीज़ बनाएंगे तो उसका हम लोग को दाम भी अच्छा मिलेगा। तो जब जहाँ बात आती है कि कपड़ों का जो वेस्ट होता है, हर गारमेंट इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो ऐसे ठप्पे पड़े रहते हैं हर तरह के कपड़ों के टुकड़ों पे, और वो हर दिन शाम को जो प्रोडक्शन होता है किलो के भाव में वो बिकता है, या फिर वो लोग उसको जला देते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हम लोग जो है ये कलेक्ट करके, कई लोग हैं जो हम लोग को ऑर्डर भी देते हैं कि उनका वेस्ट ही हम लोग जो है कुछ उससे नया और सुंदर बनाएं। तो हम इसको कलेक्ट करके पहले तो सॉर्ट करते हैं। इसका सॉर्टिंग यानी कलर, लंबाई, अगर वो हमको, क्योंकि हम लोग जो है बुनाई करते हैं, मेजरली जो है हम सारा वेस्ट का बुनाई करते हैं, तो हमको सबसे पहला तो हमें ये चाहिए कि वो बुन सकते हैं या नहीं, वो चीज़ एंगल देखी जाती है सबसे पहले। और फिर जो है उसमें कितना बारीक कपड़ा है, कितना मोटा कपड़ा है, उसको काटने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी लंबाई चाहिए। फिर इनके डिज़ाइन के हिसाब से हम उसके कलर को सॉर्ट करते हैं, कहीं पे धागे ही रह जाते हैं। तो ये सारा काम जो है हमारी महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो बैठ के करती हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो कहेंगे कि कोई प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है, क्योंकि कचरा है गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, तो ये कचरा है जो ये कचरे की तरफ फेंक देते हैं, पर इससे हमारे लिए तो रोजगारी है, रोजी रोटी है। तो मेरी तो सबसे विनती यही है कि हम आसपास जितना कचरा है, जितना फैब्रिक वेस्ट है, हमारे खुद के कपड़े जो हम फेंक देते हैं, चादरें हैं, इनका हम बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे कुछ अच्छा बनाएं। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि गारमेंट इंडस्ट्री के लिए ये कचरा है, लेकिन आप उससे हाथों से बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चुनते हैं और सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पुरानी चीज़ों को आप इस तरह फेंके नहीं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप इसे डोनेट कर सकते हैं और इनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आप अपने फटे पुराने कपड़ों का क्या करें। जो अच्छी हालत में होते हैं उसे तो आप किसी को दे देते हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन जो कपड़े फट जाते हैं, जो काफ़ी पुराने हैं, ख़राब हालत में हैं, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका क्या करें। तो हमने कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश की कि वो करते क्या है इन कपड़ों का। जैसे किचन की क्लीनिंग के लिए, हाउस क्लीनिंग के लिए, वॉल क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं उन सबको घर के अंदर। कई कपड़े ऐसे होते हैं जैसे घर में कोई चीज़ बन जाती है, जैसे मेरा कोई कपड़ा है, छोटे बच्चे का कुछ बना दिया, फिर घर में किचन का कपड़ा होता है उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। कपड़े पुराने हो गए या फिर कुछ फट गए हैं तो हम उसको या तो रजाई बनाने में, जो ठंड में ओढ़ते हैं, उसमें यूज़ कर लेते हैं। पोंछा बन जाता है घर पे, मेंस के कपड़े होते हैं तो उसको हम दे देते हैं। जो चद्दर वगैरह बना के लाते हैं, लॉन्ग लहंगास वगैरह हैं, when you cut it and make it तो वो एक वन पीस शॉर्ट मिनीज बन जाता है। Clothes are not in a good condition,
Sometimes I just redesign my own clothes. Suppose if I have a very long jeans and I just cut it into short, make it into a short. हम बैग्स बना सकते हैं कपड़ों के यूज़ करके. हम पंचिंग बैग्स में डाल सकते हैं उनका लाइक स्टीर करके उनको पंचिंग बैग में डाल सकते हैं, वो उसका यूज़ कर सकते हैं. You can make it to pillow cover if you have like long frock pillow cover. If cloth is in such condition that we cannot like give it to someone, then my mother used to make some small clothes with it. जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए हम लोग चादर ओढ़ने के लिए बना देते हैं, जो हम लोग ठंड के समय में ये सब डोनेट करते हैं. So clearly inspiration is everywhere, and it seems innate for a lot of us Indians to try and do that. But can we make this, can we scale this up, right? What are the uses for clothes that are torn, scraps that cannot be used in any way? This is what we do on an individual level. Can we scale this up? We have two inspiring people joining us now. Sachin Asha Subhash, founder of the Samaj Bandh, which is a social movement working on menstruation and women's health in rural and tribal areas, and they've been doing this since 2016. We also have Binesh Desai, the Recycle Man of India, founder of the Eco Eclectic Technology, a social entrepreneur, a waste warrior, an innovator, and who's continuously coming up with different ways of waste recycling and management. Thank you so much for joining us. 1 million tons of textile waste every year. That is a frighteningly large amount. Binesh Desai, how can we keep this 1 million tons from going into landfills and choking our cities? What can we do as individuals? As individuals, I think we need to start buying only things that we need and not the things that we want, because then and only then we'll be able to start curbing our waste generation. The second thing that I always tell, especially when it comes to Indian aspects, is always follow our roots, because जुगाड़ हमारे रग में है. You know, our moms are the biggest recyclers. I always say that. Doing that will help us individually. We all have seen our favorite t-shirts become, the moment it's toned down, become a pocha or a bag to carry our, anything that we can carry. So I always say that going back to our roots, trying to understand the most basic understanding how fibers are. The last thing that I want to also say about how individuals can help is that knowing what you're buying, because there are a lot of products out there that can be greenwashed, that are greenwashing you, or there are products that you don't know the exact source of. So that is very important for us to understand हमारा कपड़ा किधर से आ रहा है, उसके बाद उसका क्या हो रहा है. So that is also very important. Supporting local startups, startups that are working sustainably in the business. There are so many upcoming small businesses, homegrown businesses. घर की महिलाएं जो काम कर रही है about creating sustainable products, supporting them. There are brands like Rutambara who are just doing things like in Pune, where they are putting every carbon footprint that goes from the source to the end. Supporting local bodies will help us understand our carbon footprint in terms of even the clothes that we are using. So start small, stay simple, but these are the small steps that you can do. Thanks, Binesh. But you're also called the Recycle Man of India for a reason, and that's because you've contributed to recycling more than 700 tons of industrial waste. And you also use textile waste in innovative ways. Can you tell us a little bit about that? Sure. So my work actually starts when everything that you see in a landfill. So for me, landfill is an opportunity to create something that can be useful to everyone in need. May it be the textile waste, so the waste that's generated while manufacturing of the textile clothes or the used thrown away clothes, we convert them into paper blocks, into building blocks. We also in fact recently made an entire hospital bed using the used face masks, cloth masks, PPE kits and all of that, and donated it to a hospital as a tribute to actually pay a tribute to everyone who lost their lives due to lack of beds during COVID-19. So we create products that can be useful and save a lot of materials from ending up in a landfill. So we are also collaborating with brands to be able to use their post-consumption waste of clothes into useful products that can be used.
जी विनीश, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जहां लैंडफिल है वो आपके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। सचिन सुभाष, आप संस्थापक हैं समाज बंध के और ये बहुत ही अहम काम कर रहा है खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो जो कपड़ों का वेस्ट है उसको आप एक तरह से एक सोल्यूशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खास करके हमारी लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल में रखने में मदद कर रहा था कि वो स्कूलों में आए और वहां पर रहें, वहां पे पढ़ें। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आप उनके स्वास्थ्य के साथ साथ ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो स्कूलों में पढ़ने आए। समाजबंद पुराने कपड़ों से क्लोथ सैनिटरी पैड बनाता है। तो इसमें जो कपड़े इस्तेमाल नहीं किए जा सकते लेकिन जो अच्छे हैं, मतलब कॉटन, जीन्स एंड होजिए के, तो उनको एक तरह से इकट्ठा करके अलग अलग नापों में उसे काट कर एक पैड बनाया जा सकता है, जिसकी कैपेसिटी या जिसका इस्तेमाल जो यूज एंड थ्रो के प्लास्टिक के पैड मार्केट में मिलते हैं उसी तरह से होता है, लेकिन ये रीयूजेबल होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसकी डिजाइन हमने इतनी सिंपल रखी है कि ये हर कोई औरत अपने घर के सुइंग मशीन पे या हैंड स्टिचिंग पे भी ये बना सकती है। तो इससे ये होता है कि जब कोई औरत काम पे जाती है या कोई गर्ल स्कूल में जाती है तो सिर्फ स्टेनिंग की वजह से वो जो स्कूल ड्रॉप आउट होती है या फिर वहां पे जाके उसके पास पैड नहीं होते इस्तेमाल करने के लिए, या कैसे चेंज करें, या फिर दाग गिर जाएगा तो उसे जो कुछ हिचक रहते हैं, तो ये सब होता नहीं है। तो हम इस पर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं पी फॉर पेड सेशन के साथ, और उसी के साथ पुराने कपड़े से जो क्लोथ पैड बनाए जाते हैं तो वो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक बार देते हैं वो किट, जिसे आशा पैड हमने नाम दिया है। और थर्डली हम उन्हें वो कैसे खुद बनाए ये भी सिखाते हैं, ताकि घर के ही पुराने कपड़े से वो बना सके और इस्तेमाल कर सके। हम हर साल 10 टन से भी ज्यादा कपड़ों का रीयूज और रीपर्पज इसमें करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये, बड़ा आंकड़ा है। कितने टनों, हजारों टन कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, रीयूज करते हैं इतने अच्छे काम के लिए। तो सचिन, ये बताइएगा कि ये जो समाज बंद है उसकी शुरुआत कैसी हुई? ये जो आप लोगों ने काम करना शुरू किया वो अब तो काफी समय हो गया है, तो कैसे शुरुआत की थी इसकी? जैसे कि सभी लोगों को सामाजिक कामों में इच्छा रहती है, इंटरेस्ट रहता है, वैसे मेरा भी था। मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने कहीं पर पढ़ा कि जिसके पास ज्यादा कुछ है तो वो कहाँ पे लाके दे सकता है, और बाकी जिनके पास नहीं है वो वहां से लेके जाए। तो वैसे वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे महाराष्ट्र में वो काफी फेमस हुई, मानुसकीची भिंत इस नाम से, तो वो महाराष्ट्र में पहली हमने शुरू की थी। तो वहां पे लोग कपड़े आके देते थे और जरूरतमंद लोग वहां से लेके जाते थे। तो हमने ये कपड़े आदिवासी बस्तियों में जाकर बांटना भी शुरू किया। तब हमारे समझ में आया कि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है और लोगों को कपड़े से भी ज्यादा जरूरत बाकी चीजों की है, जो कि एजुकेशन और हेल्थ। तो जब हमें पता चला कि हेल्थ में हमने सर्वे किया तो बहुत सी औरतें पीरियड्स के दौरान कुछ अच्छा ढंग का इस्तेमाल नहीं करती। लगभग 88% वुमन इंडिया में पीरियड्स के दौरान हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट यूज नहीं करती। तब हमने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। तो हमें पता चला कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, जो पैड मार्केट में है वो अफोर्डेबल नहीं है, और अगर हो भी तो भी वो ला के कौन दे, क्योंकि एक सोशल टैबू पीरियड्स के साथ हमारे सोसाइटी में है। तो इन तीनों पे काम किया जा सके, जो ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सके कि जो हर औरत को खुद बना सकती है और किसी को मांगना ना पड़े। तो उस पर हमने रिसर्च किया और फिर आशा पैड जो हमने डिजाइन किया, तो उसका प्रोडक्शन एंड फिर उसका ट्रेनिंग देना शुरू किया। और उसी के साथ इस पर अवेयरनेस करना, ताकि घर के ही कपड़े से वो खुद का मेंस्ट्रुअल साइकिल मैनेज कर सके और हाइजीन मेंटेन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत उनको एक तरह से आजादी देता है कि उनको कोई बाहर भी नहीं जाना। Transformational, fantastic. Thank you so much. And we've talked about Sachin's beginning, so let's take some inspiration from there. How can we start? We can start simply, let's say, by decluttering our own wardrobes and our own homes, right? Let's go across to Rohini Rajagopalan, and she has a helpful guide on just how we can go about taking that first step. Science says that we use only 20% of our wardrobe. So what happens to the remaining clothes we have? A lot of it is clothes that we hope to wear, especially some that we want to lose weight and wear, or things that we feel we will use at an appropriate occasion or time and space.
So many of us wear the same clothes again and again on a daily basis, or open our wardrobe and feel like we have nothing to wear. Today I'm sharing with you a few things that will help you organize your wardrobe. First, declutter. This is the magic. This is what would make you feel like you have an organized space. Take out everything that you feel you're not going to wear, things that you've held on to for very long. If they're memory items, put them away separately, but things that you've not used in a very long time, have not fitted back into, please let them go and put them aside to declutter. Also remember that your wardrobe today is for who you are right now and not for who you were or who you intend to be later. Second is the clothes that you're not going to be using often, which could be your seasonal wear, your Indian wear, your travel wear. Put them in pouches and store them in the loft or in the underbed storage. You will know where they are and can access it when you actually need it. Now, what do you do with all those clothes that you've taken out? I think Indians are the best in upcycling clothes. Look at cousins, family, friends that would actually enjoy wearing them. And also know that you can pass on clothes only when they are in great condition and not when you've worn them, like they're worn out. And if they're worn out clothes, there are a lot of ways that you can upcycle them, reuse them. To know more about how you can give your clothes a conscious, log on to ndtv.com/clothes. And to know more organizing hacks, log on to organizewithease.com. बिल्कुल, तो शुक्रिया रोहिणी का कि उन्होंने हमें कम से कम जानकारी दी कि हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं. आज एक शुरुआत हुई है. And thank you all for joining us, and we hope through the course of this campaign we can keep giving you ideas and suggestions on where you can start, where you can send your textile waste, and how you can give your clothes a conscience. Thank you for joining us. Namaskar. Bye-bye.